قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف ایک بار پھر ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں۔ مریم نواز نے والد کی مری میں گاڑی کی ڈرائیونگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی ہے۔ سابق وزیر اعظم گاڑی میں موجود مریم اورنگزیب کو مری کے راستوں کے بارے میں بتاتے رہے اور مریم نواز بھی والد کے ساتھ مری کے راستوں کی یادیں تازہ کرتی رہیں۔ یہاں میں اور کلثوم نا اس روڈ پہ پیدل آتے تھے۔ اچھا، ہمیں بعد میں بلاتے تھے۔ مری سے گھر سے اچھا 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 اب ٹو چھانگلا گلی، ماشاء یہ سب پیدل جاتے تھے ہم، پیدل، اور بڑا تیز چڑھتے تھے ہم چڑھائی۔ نہیں سمجھے آپ؟ جی میں سمجھ گئی بالکل۔ آگے بھی چڑھائی آئے گی کافی، دیکھنا، وہ بڑی تیز چڑھتے تھے۔ اور مریم ہم نا کھانا لے کر پھر آتے تھے، اور یہ پیچھے سے کھانا لے کے ایم اے جی چڑھائی دیکھو، ہاں جی، یہ چڑھائی ہم چڑھتے تھے اور تیز یہاں آگے جگہ آتی ہے کالی مٹی، جی کالی مٹی، وہاں کلثوم کی خالہ گرمیوں میں آتی ہوتی تھی، ابھی ہم ان کے گھر جاتے ہوتے تھے، خالہ گیتی کے گھر۔ باڑیاں آ گیا، یہ اپنا ایم اے ہم یہاں پہ آئے تھے 1994 میں، اچھا جی، یہاں اس اسپاٹ پہ، اچھا جی، تب ہمیں بہت اچھا لگا تھا، جگہ بہت اچھی لگی تھی۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھی جگہ اللہ نے عطا فرمائی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جو بھی اگلی حکومت میں آئے گا بلاول کے خیال میں انتقامی سیاست میں لگ جائے گا۔ چترال میں پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 18 ماہ کی حکومت میں ان کے اتحادی عوامی مسائل کے بجائے ذاتی دشمنی پر توجہ مرکوز کیے رکھے۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ جس کا بھی حکومت بنے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا حکومت ہو یا نون لیگ کا حکومت ہو، ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنا حساب لے، وہ اپنا جو ذاتی دشمنیاں ہیں اس پہ وہ اترائے، انتقامی کارروائی کرے، انتقامی سیاست چلے۔ 18 مہینے جو ہم نے ساتھ دیا، ارادے تو بہت اچھے تھے، ہم نے تو ملک کو جمہوری اور آئینی بحران سے نکالنا تھا، معاشی بحران سے نکالنا تھا، خارجہ سطح پہ جو بحران تھا اس سے نکالنا تھا۔ کامیاب اگر نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ہمارا اتحادی خدمت کرنے کے بجائے، محنت کرنے کے بجائے، عوام کو مسائل سے نکالنے کے بجائے اپنا ذاتی دشمنیاں پہ توجہ دے رہے تھے۔ جب خان صاحب کا حکومت بنا تو وہ ٹک ٹاکرز کا حکومت بن گیا، اور جب میاں صاحب کا حکومت بنتا ہے تو اشرافیہ کا حکومت بنتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس ملک میں عوامی راج قائم کروں۔ یہ جو پرانے سیاستدان ہیں اور جو پرانے سیاست کر رہے ہیں، وہ آج سے دعوے کر رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو ہم ختم کریں گے، این ایف سی کو کم کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کے حق پہ ڈاکہ مارنا۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ چترالی عوام کے مطالبے پر آصفہ بھٹو کو منائیں گے کہ وہ چترال سے الیکشن لڑیں۔ بلاول نے کہا کہ آصفہ بی بی سے کہیں گے کہ یہ آپ کی نانی کی نشست ہے، آصفہ الیکشن پر نہ مانی تو خاندان سے ہی کوئی اور بندوبست کریں گے۔ آپ کا یہ مطالبہ
सामने आया है कि आप चाहते हो कि आसफा बीबी चित्राल से इलेक्शन लड़े, तो मैं आसफा बीबी से पूछूंगा, मैं कहूंगा कि ये आपकी नानी की सीट है, आए चित्राल के अवाम की खिदमत करें, आए मेरे चित्राल के बहनों की खिदमत करें, और इंशाल्लाह ज़रूर हम आसिफा बीबी को मनाएंगे, वरना अपना ही खानदान से कोई ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीट है, ये मेरा खानदानी सीट है, और मैं ऐसे आपका खिदमत करूंगा जैसे हम एक खानदान के हैं। अहम तरीन ताज़ा खबर आपको देंगे। दोबारा गौर व खौस के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को दोबारा इजहार वजूह का नोटिस जारी कर दिया है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। मरियम, क्या तय पाया इजलास में? जी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था और आज तीसरे रोज मुसलसल इस इजलास में जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो शिकायत दर्ज करने वाले तमाम शिकायत गुजार थे उनको भी सुना गया। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को भी तफसीली तौर पर जो जुडिशल काउंसिल के मेंबरान पर उनका एतराज था उस पर सुना गया। और आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तीसरे इजलास में जजेस ने बैठ के जो उनका तमाम तरह एतराज़ात थे उनकी रोशनी में एक नया नोटिस, शो कॉज नोटिस जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को जारी किया। और इसके बाद 14 रोज के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स के मुताबिक जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को इस शो कॉज नोटिस का जवाब देना होगा। और इस शो कॉज नोटिस के जवाब में वो तमाम तरह जो उनके ऊपर इल्जामात आयद किए गए हैं उस पर अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करेंगे। और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये तय करेगी कि उन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ किस तरीके से प्रोसीड करना है। पहले इससे कबल भी एक शो कॉज नोटिस 27 अक्टूबर को जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को जारी किया गया था, लेकिन ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का उस नोटिस के ऊपर ये एतराज़ था कि उसके अंदर उनके खिलाफ जो शिकायत है उनकी तफसीलात दर्ज नहीं है। अब एक तफसीली जो है वो शो कॉज नोटिस जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को जारी किया गया है, जिसके अंदर उनके खिलाफ तमाम तर शिकायत की तफसीलात शामिल की गई हैं। और आज काउंसिल ने ये नोटिस जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को जारी किया है, जिसके मुताबिक अब तकरीबन 7 दिसंबर तक जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को अपने इस शो कॉज नोटिस का जवाब देना होगा। और उसके बाद ही काउंसिल उस जवाब का जायजा लेते हुए आगे की कार्रवाई तय करेगी। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज। अहम तरीन खबर आपको देंगे। बरतानवी अखबार ने इंकशाफ किया है कि अमेरिका ने अपनी सरजमीन पर सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल का मंसूबा नाकाम बना दिया है। बरतानवी अखबार के मुताबिक अमेरिकी कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी साजिश की तस्दीक कर दी है कि भारत सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करना चाहता था। अमेरिका ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश पर भारत को इंतबाह भी जारी किया है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक भारत ने अमेरिकी इंतबाह पर ही गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने का मंसूबा तर्क किया है। सिफारती इंतबाह के बाद अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स ने एक शख्स पर फर्दे जुर्म भी आयद की थी। हाल ही में कनाडा में एक शख्स के मौत के हवाले से भारतीय हुकूमत के मुलव्विस होने का इल्जाम कैनेडियन हुकूमत ने आयद किया था। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे कि हुकूमत 55 बलोच लापता तलबा को 7 दिन में बाजियाब कराए, वरना वजीर आजम खुद पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम की 29 नवंबर को मशरूत तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस के मुताबिक 1 साल से लापता तलबा के बाजियाब न होने पर वजीर दिफा, वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला भी पेश हों। वैसे यूसुफज़ई की रिपोर्ट देखिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बलोच तलबा की गुमशुदगी पर ईमान मजारी एडवोकेट की दरखास्त पर समाअत की। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने 3 रुकनी वुज़रा कमेटी की रिपोर्ट पेश की जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा, लापता अफराद के लिए कमीशन बना, जबरी गुमशुदगियों का मामला वफाकी हुकूमत को भेजा गया। लापता अफराद कमीशन ने कोई काम नहीं किया, ये बहुत बड़ा अलमिया है। ये कमीशन सिर्फ अदालतों के फैसलों को बाईपास करने के लिए बना है। सिर्फ एक का नहीं, 55 बलोच तलबा का मामला था जो वजीर आजम को भिजवाया गया। उन्हें एहसास होना चाहिए था, हम समझे वो आकर कहेंगे ये हमारे बच्चे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट ने पहले भी वजीर आजम को बुलाया था, इसके बावजूद कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हुई। 21वीं समाअत पर भी हम उसी जगह खड़े हैं। इस केस में वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर दिफा को तलब करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वजीर आजम और वुज़रा को तलब ना करने की इस्तदा की, जो अदालत ने मुस्तरद करते हुए कहा, इससे बढ़कर और क्या तौहीन होगी इस मुल्क के लोगों के साथ कि जब लोग लापता हो रहे हैं। 7 दिनों का वक्त है कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक 55 लापता बलोच तलबा पेश करें, वरना वजीर आजम खुद पेश हों। केस की मजीद समाअत 29 नवंबर को होगी। अवैस यूसुफज़ई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी कर दिए। समाअत के दौरान जस्टिस याहिया आफरीदी ने सवाल किया कि तफ्तीशी रिपोर्ट में आजम खान के बारे में क्या कहा गया। बताया गया कि पहले कहा गया था कि आजम खान मुल्जिम है। इंक्वायरी भी कहा गया कि शरीक मुल्जिमान का किरदार तफ्तीश पे तय होगा। और बाद में चेयरमैन पीटीआई के सफीर वकील सलमान सत्तर ने बताया कि बाद में आजम खान अगवा हुए, जिसका अहले खाना ने मुकदमा दर्ज कराया और फिर हैरान कुन तौर पर आजम खान का 164 का बयान सामने आ गया। आजम खान को मुल्जिम से इस्तगासा का गवाह बनाया और असद उमर को छोड़ दिया गया, जिस पर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि देखे ना, फिर सच सामने आता है। जस्टिस तारिक मसूद के रिमार्क्स पर सलमान सत्तर ने कहा कि आजकल सच ऐसे ही सामने आ रहा है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने सवाल किया कि साइफर खुफिया दस्तावेज था या नहीं। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने जवाब दिया कि डी क्लासिफाइड होने के बाद साइफर खुफिया दस्तावेज नहीं था। जस्टिस याहिया आफरीदी ने सवाल किया कि क्या डी क्लासिफाइड होने से पहले साइफर किसी को दिखाया। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि अगर साइफर हवा में लहरा कर बता दिया जाए कि इसमें क्या है तो क्या ये अबलाग के जुमरे में नहीं आता। साइफर केस में दरखास्त जमानत की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। अब आपको बताएं कि शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर आईईडी हमला किया गया है। आईएसपीआर ने बताया है कि आईईडी धमाके में 2 फौजी जवान शहीद हो गए। शोहदा में लांस नाइक एहसन बादशाह और लांस नाइक साजिद हुसैन शहीद शामिल हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर आईईडी हमला किया गया है।